Hi everyone. Following quadratic equations, we want to go to a look at complex numbers. A complex number is a logical successor of quadratic equations because we built an interest into complex numbers by using the concept of quadratic equations. A quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Here small x equal to means the root is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac by 2a. The b square minus 4ac is called the discriminant. If the discriminant is greater than or equal to 0, then we get the real result of x. If the discriminant is strictly less than 0, then the result will be imaginary. The result will be complex. So here we need to explain about small I equal to root over minus 1. We require square root of minus 1, that is the iota. Students, I have started complex numbers. I have already given 4 videos on complex numbers. So students, in this video, I will explain argand plane or complex plane and conjugate of a complex number and the properties of the complex of the properties of the conjugates and some problems regarding to the conjugate. Argand plane or complex plane. Okay, student. Consider a complex number. Consider a complex number z equal to a plus ib. There are several ways to write a and ib. One of the way is to write a comma b, where a is called a real part and b is called a real part and b is called imaginary part. Since a comma b in order pair represents coordinates as x coordinate and y coordinate in coordinate plane. In coordinate plane leads to an idea to write this in a plane called argand plane or complex plane. Okay, students. Now, z equal to a plus ib. Z equal to a plus ib. A is called what? A real part. And b is called imaginary part. Not I, only b. So a is real number. A comma b both are real numbers. And b is called imaginary part because b is with I. B is multiplication, multiplicated with I. So now students, you can see what is argand plane. जिस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन हम लोगों ने बनाया था x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पे भी लिखा है x एक्सिस, बट यहाँ पे लिखा है i y, यहाँ पे लिखा है i y. दिस x एक्सिस इन कोऑर्डिनेट प्लेन जो था उसी को ही हम लोगों ने हम लोग इसे लिख रहे हैं इन argand plane. दिस x एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस and this is y axis is called, and this y axis is called imaginary axis. So students, this y axis is called imaginary axis and here also written iy and real axis. तो जैसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, कोऑर्डिनेट प्लेन में करते थे,
एक्स एक्सिस में 0 1 2 3, राइट साइड में 1 2 3 एंड लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। सिमिलरली इन वाई एक्सिस में ऊपर साइड में हम लोग चलेंगे तो फर्स्ट यूनिट जब लेंगे तो 1i मतलब i 2i 3i 4i 5i 6i एंड नीचे तरफ -i -2i -3i -4i, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो सपोज 4,3i यहाँ पे लिखा है, देखो 4,3i हाउ टू राइट। सो एक्स एक्सिस में 4 ले लेंगे 1 2 3 4। सो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जो जैसे 4,3i, दिस मींस व्हाट। अच्छा 4,3 ऐसे नहीं लिख के हम इसे ऐसा लिखते हैं सीधा, हम लिखेंगे 4,3। 4,3 आर्गेन प्लेन, इसका मतलब ये है कि 4 + 3i के बारे में बात हो रहा है। सो फर्स्ट वन इज हमेशा रियल एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी वैल्यू। सो 4,3i लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, बट 4,3 इज मोर एप्रोप्रिएट। सो दिस इज 4,3। सो 4,3 in x-axis 4 and y-axis 4,3i in y-axis it is 3i. So student, so ये 4,3i इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं। अब ओरिजिन से अगर इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं, ओके। इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। सो ओरिजिन से ये जेड तक का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जेड पॉइंट जो है एक पॉइंट को डिनोट करता है, तो 4z, और इसको हम लोग कहेंगे जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज इन द आर्गेंड प्लेन। बस इतना ही आर्गेंड प्लेन के बारे में, और कुछ। Okay, so one note I want to discuss with you. Okay, sure. Note. Say one note. Note number one. Note number one. That is, if a non-zero complex number, non-zero complex number is multiplied by I, Z, a non-zero complex number Z, okay, a non-zero complex number is Z, and that Z, okay, non-zero means any complex number, some value of a and b, so is multiplied by I, then Z rotates 90 degree or pi by 2 with respect to origin in anti-clockwise. Okay, so first point, what is the first point? First point is, आप लोग इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई, कोई भी, where suppose here x and y greater than 0, suppose you have taken here x y greater than 0, तभी तो z x प्लस आई वाई को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया गया है। सो z इक्वल टू x प्लस आई वाई जो है, अब ये x प्लस आई वाई में z में अगर हम लोग i मल्टीप्लाई करेंगे, यानी i मल्टीप्लाई देन i इंटू एक्स प्लस आई स्क्वायर इंटू वाई, सो आई स्क्वायर वाई मतलब माइनस वाई प्लस आई एक्स। सो अब रियल पार्ट जो है माइनस वाई एंड इमेजिन पार्ट, सो माइनस वाई कमा एक्स। अब माइनस वाई कमा एक्स जब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, सो माइनस वाई एक्स किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने भी पढ़ा आर्गेन प्लेन, इस आर्गेन प्लेन में जिससे कि हम लोगों ने देखा कि कोई भी जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, -3,4 सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, -3,-4 थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड 3,-4 दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हम लोग जो कॉम्प्लेक्स को रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज प्लस प्लस है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग रख सकते हैं इसे। 3 - 4
क्योंकि ये वाला एरिया जो है ये तो प्लस माइनस है और ये माइनस माइनस और ये माइनस प्लस एंड दिस इज प्लस प्लस, जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन में करते थे इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में वैसे ही करते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इसमें अगर मैं आई मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस वाई प्लस आई एक्स, तो माइनस वाई प्लस आई एक्स जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे अगर एक वैल्यू है तो वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, लेकिन ओरिजिन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री कवर करेगा, 90 डिग्री, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस मतलब सीधा जा रहा है वैल्यूज। तो इसी तरह से सेकंड पॉइंट, सेकंड नोट इज सेम थिंग है, वही इफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z is multiplied by minus I, then new z becomes rotates at 90 degree with respect to origin in clockwise। चलिए एक एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं ये चीज को। सपोज मान लिया कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 3 प्लस 4i। अब इसे अगर हम लोग माइनस आई मल्टीप्लाई करेंगे, और इस केस के लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, वही z इक्वल टू 3 प्लस 4i जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। अगर यहाँ पे आई जेड मल्टीप्लाई करते हैं तो 3i प्लस 4i स्क्वायर मतलब -4, सो -4 प्लस 3i, सो -4 3 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर पता चल रहा है। और आप लोग देखोगे ये -4 प्लस 3i जो है, या जो -4 प्लस 3 है, -4 3 यहाँ पे कहीं पे -4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो और यहाँ से जो ओरिजिन में जो एक लाइन खींचेंगे तो ये लाइन और ये वाला लाइन जेड, ओ जेड एंड ओ, इसको हम Z1 कर लेते हैं, ओ जेड एंड ओ Z1 इज इन इंक्लाइंड इन एंगल 90 डिग्री टू ईच अदर, दोनों 90 डिग्री में ब्रेक करेगा। और ये किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये घूम जाएगा और रोटेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर माइनस आई मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर माइनस आई मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 क्या हो जाएगा -3i हुआ, और ये 4i क्या हो जाएगा माइनस आई मल्टीप्लाई की, तो -4i स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 4 -3i हुआ। तो रियल पार्ट हो गया 4, इमेजिनरी पार्ट हो गया -3। 4 और -3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ऑब्वियसली। अब देखिए यहाँ पे अगर 3 प्लस 4i था, इस जगह पे 3 प्लस 4i था, तो -3 सॉरी 4 -3 के कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा 4 -3। अगर यहाँ पे 3 4 था, 3 4 मतलब 3 प्लस 4i था और ये 4 -3i हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर प्लस आई मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, एंड अगर माइनस आई मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो ऑटोमेटिकली फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएगा और वो भी 90 डिग्री में आएगा और क्लॉकवाइज में आएगा, क्लॉकवाइज मतलब 90 इस तरह से आएगा। नेक्स्ट ओके okay student, so prove that the triangle formed by the points 1 plus I by root 2 and I as vertices in the Argand diagram is isosceles। so देखिए कोई एक ट्राइंगल है जो कि एक वर्टेक्स है 1 मतलब 1,0 and B vertex is triangle का 1 by root 2, x real part is 1 by root 2, imaginary part also 1 by root 2, and third vertex is I means 0 plus 1i, so 0, 1, okay। Okay students, so proof that the triangle formed by the points 1 1 plus I by root 2 and I as the vertex of Argand diagram is isosceles। अच्छा एक ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स दिया है, लेकिन किस तरह से दिया है देखो
कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में दिया है 1 1 प्लस आई बाय रूट 2 एंड आई, तो ये तीन वर्टिसेस इस तरह से हो गया 1 0 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 एंड 0 1। सो हम इसे क्या करेंगे कि आइसोसोस ट्रायंगल के लिए व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर आइसोसोस ट्रायंगल, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी सी या बी सी इक्वल टू सी ए, कोई भी दो साइड। तो पहले ए बी निकाल दिया, ए बी, ए बी किस तरह से निकालेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 1 बाय रूट 2 माइनस 1 1 बाय रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, अगर इसे स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है वो नहीं लिखेंगे, वो हट जाएगा स्क्वायर रूट। अगर ए बी लिखेंगे तो स्क्वायर रूट रखेंगे, ए बी स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट क्यों रखेंगे, ऐसे ही हम लोग निकाल देते हैं 1 बाय रूट 2 माइनस 1 1 बाय रूट 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 1 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 1 बाय 2 का स्क्वायर तो 1 बाय 2। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इज एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 और फिर 1 प्लस 1 2 2 टू 4 4 माइनस रूट 2 4 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 2 कैंसिल कर देंगे तो 2 माइनस रूट 2, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ ए बी स्क्वायर के बाद अब बी सी स्क्वायर निकालते हैं। अगर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर सेम हो गया तो आइसोसोलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सेम नहीं हुआ तो सी स्क्वायर भी निकालेंगे, तो तीनों में से कोई ना कोई दोनों तो इक्वल हो जाएगा। सो सी ए बी सी निकालेंगे पहले, बी सी तो 0 माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 बाय 2 मींस माइनस 1 बाय 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय 2। फिर 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। अरे इतना करने का जरूरत भी नहीं था, 2 माइनस रूट 2 इतना निकालने का जरूरत नहीं था, क्योंकि यहां से पता तो चल ही रहा है कि ये है 1 बाय 2 और ये है 1 माइनस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। 1 बाय रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर जो होता है 1, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर, ये तो ऑलवेज है। जिस तरह से a माइनस b का मॉड्यूलस इक्वल टू b माइनस a का मॉड्यूलस होता है, इस तरह से a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इसका वैल्यू 2 माइनस रूट 2 आ जाएगा। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी। सो आइसोसोलेस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट टॉपिक, conjugate complex numbers. Okay, next topic is conjugate complex numbers. What is conjugate complex numbers? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी, a प्लस आई बी फॉर b नॉट इक्वल टू 0, तो z बार इज कॉल्ड conjugate complex, conjugate complex number. Okay, conjugate of complex number z, तो z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी इफ z बार इक्वल टू a माइनस आई बी, मतलब z इक्वल a प्लस आई बी है तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा a माइनस आई बी, a माइनस आई बी हो जाएगा। और ये ध्यान रहे कि b नॉट इक्वल टू 0 है, अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स कहेंगे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसे हम लोग कैसे कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो ये कॉन्जुगेट होता क्या है, देखो z इक्वल टू सपोज a प्लस आई बी। सो कॉन्जुगेट जो होता है वो क्या होता है कि i का वैल्यू जो है वो माइनस आई हो जाता है। जो i है z में, जो i का साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा, और माइनस आई है तो और एक माइनस लगा के प्लस आई कर देंगे। सो अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, मतलब सबको मान लिया कि z a प्लस आई बी, z को जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो a कॉमा p करके लिखेंगे, वेयर a b ग्रेटर देन 0। ओके, सो a b ग्रेटर देन 0। अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। अगर z इज इन, इफ z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, z bar will be
Z bar will be in fourth quadrant. अब ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि बी में ही तो चेंज हो रहा है। अगर बी में चेंज हो रहा है इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट के क्या मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कंपैरिजन का मीनिंग ये होता है कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड मीन्स, कॉन्जुगेट ऑफ जेड मीन्स क्या, कि इमेज ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस के साथ इसका इमेज होगा, मतलब ये जेड है तो ये एक्स एक्सिस इज द रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को तो हम लोग रियल कहेंगे और इसे तो हम लोग इमेजिनरी कहेंगे, आई वाई बोलेंगे या इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। सो जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जेड बार जरूर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, क्योंकि आई पार्ट में चेंज होता है। आई पार्ट क्या होता है, जो कि हाइट में चेंज होता है। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है बी आई तो नीचे में माइनस बी आई, तो उसी तरह से अगर कोई भी कंप्लेक्स नंबर यहाँ पे है, कोई भी कंप्लेक्स नंबर यहाँ पे है, यू कैन सी अब ये इसका इमेज इस तरफ आ जाएगा। ये अगर Z1 है तो ये Z1 बार हो जाएगा। इस तरह से कोई भी कंप्लेक्स नंबर अगर यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो जाएगा। Z अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो Z बार जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो जाएगा। इसी तरह से अगर Z सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, Z अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो इसका जो कंजुगेट वो तो थर्ड क्वाड्रेंट पे हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब यहाँ पे अगर है, यहाँ पे कहीं पे अगर जेड है तो Z2 कर दो इसे, तो Z2 बार पूरा इमेज, इसका जो इमेज है Z2 का पूरा इमेज Z2 बार, ये परपेंडिकुलर है, ओके दिस इज द परपेंडिकुलर, सो Z2 बार हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो वो किस में हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर जेड है तो इसका जेड बार जो है वो हो जाएगा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट का ऊपर में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज द कॉन्जुगेट मीनिंग इन फिगर वाइज। एंड अगर आप बोलोगे कि कोई अगर वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर में है तो ये रियल नंबर हो गया, कंप्लेक्स नंबर तो हुआ, रियल नंबर हो गया। अब उसका जो कंजुगेट वो वहीं पे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंजुगेट है एक्स एक्सिस में तो वो थोड़ी ना इमेज और कहीं फॉर्म करेगा, तो वहीं पे वो रह जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जैसे कि मान लिया कि 3,0, 3,0 का क्या कंजुगेट है, 3,0, 3,0 का क्या कंजुगेट है, 3,0 मतलब मान लेंगे जेड इक्वल टू 3 प्लस 0 आई, ओके 3 प्लस 0 आई। अगर 3 प्लस 0 आई तो इसका जो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 आई। ओके सर, सो ये जो प्लस जो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होने से भी जेड और जेड बार में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने की बात है कि इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, Z1 या मान लो कि जेड, ओके कोई जेड अगर ए प्लस आई बी है तो जेड बार तो ए माइनस आई बी हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, whether it is नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तो होना ही है, क्योंकि वैल्यू तो हम लोग का आई का ही चेंज होता है, प्लस आई माइनस नहीं हो जाता है। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स अगर ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलता है, ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी, यू विल सी आई बी कैंसल्स ट्वाइस ऑफ ए, तो ये तो रियल वैल्यू आया। अब जेड के साथ अगर कोई इसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू निकलता है, ए प्लस आई बी से अगर ए माइनस आई बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये भी रियल वैल्यू है। सो ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, कॉन्जुगेट का जो प्रॉपर्टीज है। Okay, so conjugate of a complex numbers का some properties are there. Properties of conjugate are very very important. Properties of conjugate complex numbers. Complex number. So conjugate complex numbers का properties के बारे में discussion करें. Number one property is
जेड बार होल बार इक्वल टू जेड। सो स्टूडेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो है वो कंजुगेट हट जाता है, वो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल ए प्लस आई बी का कंजुगेट क्या आ जाएगा, ए माइनस आई बी का कंजुगेट हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस आई बी का कंजुगेट ए माइनस आई बी है, और ए माइनस आई बी का कंजुगेट में ए तो रियल पार्ट है, और माइनस आई बी जो कि हो जाएगा प्लस आई बी। ओके, सो अगर कोई बोलेगा कि जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा, वो तो जेड कंजुगेट हो जाएगा। फिर एक कंजुगेट लेंगे तो वो जेड हो जाएगा। अगर 4 बार कंजुगेट करेंगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी हो जाएगा, फिर ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी हो जाएगा, फिर ए माइनस आई बी फिर ए प्लस आई बी हो जाएगा, तो वापस चढ़ा जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर कंजुगेट हम लोग करते चलेंगे तो वापस जेड हो जाएगा। ओके, सो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस जेड बार, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे, इसके बारे में हम जस्ट डिस्कशन कर चुके हैं। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ रियल जेड। ओके, या अगर जेड को x प्लस वाई बोलेंगे तो जेड प्लस जेड बार को 2x बोलेंगे, क्योंकि जेड का जो रियल है वो तो x है। सो रियल ऑफ जेड इज ऑलवेज x। सो इसका आंसर जेड प्लस जेड बार इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल जेड। नंबर थर्ड, अगर जेड माइनस जेड बार की बात करेंगे तो दिस इज ट्वाइस ऑफ आई इमेजिनरी जेड। अब ये कैसे हो गया, देखो जैसे जेड को मान लिया कि x प्लस आई वाई, और माइनस जेड बार को यहाँ पे दिस साइड राइट जेड इज x प्लस आई वाई माइनस जेड बार इज x माइनस आई वाई। So x plus iy or x minus y, if we subtract x plus iy minus x plus iy, so x cancelled. So iy plus iy 2iy, मतलब 2i imaginary z, 2i imaginary z। ये तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, तो इसे हम लोग प्रूफ कर दिए, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी z। ओके, सही से करते हैं, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी z। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी जेड आ जाएगा। सो नंबर फोर्थ पॉइंट इज इफ जेड इक्वल टू जेड बार, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल। ऐसा कैसे, सो राइट, सो इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक, सो जेड इक्वल टू जेड बार, मतलब जेड इक्वल टू जेड बार, सपोज मान लें कि जेड इज एक्स प्लस आई वाई, सो जेड बार तो पक्का एक्स माइनस आई वाई होना चाहिए। इफ जेड इक्वल टू जेड बार, इसका मतलब यही है, तो एक्स इज कैंसल्ड एंड आई वाई इक्वल टू माइनस आई वाई। सो आई वाई प्लस आई वाई इक्वल टू जीरो, सो 2i y इक्वल टू जीरो, सो y इक्वल टू जीरो। सो y इक्वल टू जीरो, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में y इक्वल टू जीरो, मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, तो वो तो प्योरली रियल हो जाएगा। और ऐसे भी देखेंगे कि कोई भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई भी प्योरली रियल का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो 3 ही रहेगा। सो इसका मतलब जेड इक्वल टू जेड बार कब होगा, जब वो रियल नंबर होगा। ओके, सो अब नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अगर जेड इक्वल टू माइनस जेड बार, या ऐसे मान लो कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो, सो जेड इज प्योरली इमेजिनरी। ऐसे कैसे, देखो जेड इक्वल टू माइनस जेड बार, सपोज जेड मान लिया कि एक्स प्लस आई वाई है, और इसका बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई, मतलब जेड का बार एक्स माइनस आई, फिर एक तो माइनस साइन है, तो ये तो हो जाएगा माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस आई वाई। मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है, जेड को लिखा एक्स प्लस आई वाई, और माइनस जेड बार को लिखा एक्स माइनस वाई, किसी को भी करो, दोनों में से किसी को भी करो, दोनों का तो मीनिंग सेम ही है। तो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, तो आई वाई कैंसल, सो ये माइनस इसको लेफ्ट में ले आओ, सो 2x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब जो रियल है, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो। अगर रियल पार्ट जीरो हो जाएगा तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है इसमें प्योरली इमेजिनरी इसका आंसर आएगा। तो प्योरली इमेजिनरी केस में ही माइनस जेड बार होता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 3i का अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा,
-3i आ जाएगा। इसमें अगर और एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3i आ जाएगा। तो z इक्वल टू माइनस जेड बार कब होता है, जब z इज प्योरली इमेजिनरी। और इसको थियोरेटिकली भी करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। मान लें कि x प्लस आई वाई, ठीक है, x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड, अच्छा ये तो कर दिया हम लोगों ने, x प्लस आई वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई। सो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। x अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। सही से लिखते हैं, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली imaginary. Okay, fifth point understood everyone. So next, sixth point. Okay, sixth point क्या होगा, नेक्स्ट पेज करते हैं इसके लिए। So for sixth point, z into z bar, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड होल स्क्वायर। ऐसे कैसे, x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके साथ x माइनस आई वाई उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x मीन्स व्हाट, रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर। ओके, इसको बता दिया। फिर सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी से, व्हाट इज द सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी, द सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी इज अब तो z1 प्लस माइनस z1 प्लस माइनस z2, इसका अगर हम लोग होल कंजुगेट करते हैं तो दिस विल बी z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। सेपरेट हो जाएगा आराम से, कोई भी कॉन्जुगेट z1 है और z2 है तो इसका अगर होल कंजुगेट करेंगे तो z1 कुछ भी x1 प्लस i1 ले लो, z1 इक्वल x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इज सपोज x2 प्लस आई वाई टू। अब ये z1 प्लस z2 सपोज प्लस के लिए करते हैं, z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू। तो ये z1 प्लस z2 और उसका होल कॉन्जुगेट कर देंगे। सो x1 प्लस x2, फिर आई y1 प्लस y2, फिर कॉन्जुगेट करना है, मतलब x1 प्लस x2 माइनस आई y1 प्लस y2। ये जो प्लस है आई जो है वो माइनस आई हो जाएगा, बस इतना ही तो है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, जो x1 और माइनस आई y1, x1 माइनस आई y1 प्लस x2 माइनस आई y2, इसको सजा के थोड़ा लिख दिए, x2 है ये, इक्वल टू हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x1 माइनस आई वन को x1 प्लस आई y1 का कॉन्जुगेट प्लस x2 प्लस आई y2 कॉन्जुगेट। मतलब ये है कि दिस इज z1 बार प्लस z2 बार। हो गया प्रूफ। सो इसको इन जनरल z1 प्लस माइनस z2 प्लस माइनस z3 प्लस माइनस अप टू n टाइम्स का अगर कंजुगेट करेंगे देन इट विल बी z1 प्लस माइनस z2 प्लस माइनस z3 प्लस माइनस डॉटेड अप टू zn का कंजुगेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेवंथ एट्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के लिए इधर z1 प्लस माइनस z2 एंड इट सेवेंथ प्रॉपर्टी था। नाउ विल डिस्कस एट्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 इज z1
into Z2 multiply. So Z1 into Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate. आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो. ओके, सो इन जनरल हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं. इन जनरल इसे भी Z1 को x1 प्लस i1 एंड Z2 को x2 प्लस i2 लेके कर सकते हैं. सो Z1 into Z2 into Z3 into Z4 and so multiplication up to n का conjugate is equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate into Z3 conjugate dotted up to Zn conjugate. So in general also you can write this not only for these two but also for n terms you can multiply. We can distribute it. The conjugate ninth number property is Z1 divided by Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate by Z2 conjugate. अच्छा, यहाँ पे एट्थ प्रॉपर्टी में और एक चीज हम लोग जोड़ सकते हैं. इन एट्थ प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट नोट ऐसा कर लेंगे कि जैसे z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड अप टू n टाइम्स है, इसका कॉन्जुगेट मतलब z जो है n टाइम्स इट्स कॉन्जुगेट. ओके, तो इससे हम लोग ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू नोट z टू द पावर n का होल कॉन्जुगेट. नोट z एन होल कॉन्जुगेट हम लोग ऐसे लिखते हैं z इंटू जेड इंटू अप टू n टाइम्स. तो ये तो हो जाएगा z कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे n टाइम्स. तो z कॉन्जुगेट टू द पावर z कॉन्जुगेट टू द पावर n. सो ये एक मैंने प्रॉपर्टी हो गया, implies that z to the power n whole conjugate equal to z conjugate to n. Okay, next property number 10, z1 z2 conjugate plus z1 conjugate into z2. इस तरह से अगर कभी एक्सप्रेशन दिखा तो 2 twice of real z1 z2 bar or equal to twice of real z1 bar z2. This property also we can use. देख सकते हो इसका LHS Z1 मीन्स x1 प्लस i1 सीधा सा लिख दिया और Z2 मीन्स x2 प्लस i y2. अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे प्लस इस तरह से x1 प्लस i y1 कॉन्जुगेट एंड x2 प्लस i y2 सिंपल. So now we'll check whether this LHS is equal to this second part of RHS and third part of RHS. So x1 plus iy1 into x2 plus iy2. So x1 plus iy1 into x2 minus iy2 plus x1 minus iy1 into x2 plus iy2. x2 plus iy2. So now multiply कर दो x1 into x2, ठीक है, माइनस y1 y2. ओके, x1 x2 फिर माइनस i x1 y2. सीधा सा मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं और क्या, माइनस i y1 x2 माइनस i स्क्वायर मतलब प्लस y1 y2. फिर इस तरह से यहाँ पे भी x1 x2 x1 x2 x1 x2 फिर प्लस i x1 y2 फिर माइनस i y1 x2 माइनस i स्क्वायर मतलब प्लस y1 y2. तो जितने भी रियल पार्ट्स है सबको एक जगह रख दो. x1 x2 एक रियल पार्ट हो गया और y1 y2 भी हो गया, इधर से भी x1 x2 एंड लास्ट वन इज आल्सो y1 y2. सारे रियल को एक ही जगह रख दो. x1 x2 तो 2 x1 x2 प्लस 2 y1 y2 2 x1 x2 प्लस y1 y2. ये क्या हुआ, ये हो गया रियल ऑफ z1 z2 बार. नो, 1 सेकेंड, हमें प्रूव करना था z1 z2 बार प्लस z1
Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। ओके, तो इससे हम लोग को निकालना है क्या, 2 रियल Z1 Z2 बार Z2। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने से कुछ कट रहा है क्या, देख लो, देख लेते हैं। इतना तो जितना राउंड घुमा दिया इतना तो नहीं कट रहा है। माइनस आई x1 y2 प्लस आई x1 y2 तो कट जाएगा, प्लस आई y1 x2 तो माइनस ये भी कट जाएगा। सारे इमेजिनरी टर्म्स कट गए, तो बचा क्या, सिर्फ 2x1 x2 2x1 x2 प्लस y1 बस यही बचा। और क्या, RHS। अब RHS का फर्स्ट पार्ट जो है, RHS का जो फर्स्ट पार्ट है उसे देखते हैं, वो क्या है, ट्वाइस ए रियल ऑफ Z1 Z2 बार। अब ये सही है क्या, तो Z1 Z2 बार यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है, Z1 Z2 बार इज हियर इज द Z1 Z2 बार, मतलब Z1 Z2 बार इज हियर। अब Z1 Z2 बार का जो रियल पार्ट है वो x1 x2 प्लस y1 y2। सो स्टूडेंट्स वी कैन राइट हियर ट्वाइस ऑफ, 2 तो पहले से ही है, और रियल तो जो है x1 x2 प्लस y1 y2। Z1 Z2 बार का जो x1 x2 प्लस y1 y2 तो पहले से ही था, खाली हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला। अब ये जो RHS का फर्स्ट पार्ट है वो LHS का इक्वल हो रहा है क्या, यस हो रहा है। उसी तरह से RHS का जो सेकंड पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएगा। RHS द सेकंड पार्ट इज ये चारों है, ये चारों, तो x1 x2 प्लस y1 y2। सो मुझे तो चाहिए 2 रियल Z1 बार Z2, मतलब ट्वाइस ऑफ x1 x2 प्लस y1 y2, x1 x2 प्लस y1 y2। तो x1 x2 प्लस y1 y2 तो बस हो तो गया, सेम हो गया, ये तीनों के तीनों इक्वल है, बस ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। ये कौन सा नंबर प्रॉपर्टी था, 10th नंबर प्रॉपर्टी था। अब हम लोग करेंगे 11th नंबर प्रॉपर्टी। सो लास्ट प्रॉपर्टी इज, सपोज z equal to f of z1 z2, means suppose there is a z, there is a complex number which is a function of z1 and z2. Suppose we want to conjugate it, so then we have to fully जो फंक्शन है उसमें जहां जहां z1 और z2 है सबको कंजुगेट करना पड़ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट conjugate of a complex number.